Hello students, now discussed about the dynamic partitioning. What do you mean by the dynamic partitioning? Dynamic partition try to overcome the problem caused by the fixed partitioning. In this technique, the partition size is not declared initially. It's declared at the time of the process loading. The first part, as you know that first partition is reserved for the operating system. The remaining page is divided into parts. The size of each partition will be equal to the size of the process. The partition size vary according to the need of the process so that internal fragmentation can be avoided here. That means क्या है कि डायनेमिक पार्टीशंस में हमने पहले इनिशियली केसेस में किसी भी टाइप का पार्टीशन नहीं किया है. हमने पार्टीशन किया है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द प्रोसेस. जो भी आपके प्रोसेसेस आई हैं जिन्हें लोड होना है मेन मेमोरी के ऊपर, उनके साइज के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, पार्टीशंस किए हैं. दैट मीन्स प्रोसेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पार्टीशन हुए हैं, तो आपकी किसी भी टाइप की इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो डायनेमिक पार्टीशन में हमने ओवरकम किया है किसकी प्रॉब्लम को, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को. देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. सपोज करो मेरे पास क्या है, कुछ नंबर ऑफ प्रोसेस हैं. प्रोसेस के साइज क्या है, वेरी है. 5 MB प्रोसेस है, P2 का साइज 2 MB है, प्रोसेस P3 का साइज 3 MB है, प्रोसेस P4 का साइज 4 MB है. और ये मेरा क्या है, डायनेमिक पार्टीशन. मैंने फर्स्ट पार्ट में क्या है, यू नो दैट ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर है. फर्स्ट पार्टीशन का साइज कितना है, कितना बनाया है, 5 MB, क्योंकि हमारा प्रोसेस P1 का साइज क्या है, 5 MB है. बट कॉन्टिन्यूस एलोकेशन होगा. देन प्रोसेस P2 आई, P2 का प्रोसेस का साइज कितना है, 2 MB है, तो सेकंड पार्टीशन का साइज भी 2 MB मैंने रखा. P3 का साइज कितना है, 3 MB है, तो पार्टीशन 3 का साइज भी 3 MB होगा. प्रोसेस P4 का साइज क्या है, 4 MB है, और प्रोसेस पार्टीशन P4 का साइज भी, पार्टीशन 4 का साइज भी 4 MB होगा. दैट मीन्स पार्टीशन, डायनेमिक पार्टीशन के केस में प्रोसेस साइज शुड बी इक्वल टू द पार्टीशन साइज. ठीक है ना. What are the advantage of dynamic partition over fixed partition? Let's see here. No internal fragmentation. We already discussed here. Given the fact that partition and dynamic partitioning are created according to the need of the process, it is clear that there will not be any internal fragmentation because there will not be any unused remaining space in the partition. Okay dear. No limitation of the size of the process. In fixed partition, the process with the size is greater than the size of the largest partition could not be executed due to the lack of sufficient continuous memory. Here in dynamic partition, the process size can't be restricted since the partition size is decided according to the process size. Okay, that means no limitation of the size of the process. And third one is the degree of multi-programming is dynamic. That means degree of multi-programming will be increases in case of dynamic partition as compared to static partition. Let's see here, due to the absence of internal fragmentation, there will not be any unused space in the partition since more processes can be loaded in the memory at the same time. Okay, and there are some disadvantages also there. One disadvantages are external fragmentation problem also occur in dynamic partition. Absence of internal fragmentation doesn't means that there will not be external fragmentation. अगर internal fragmentation नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि external fragmentation भी नहीं होगा. external fragmentation की प्रॉब्लम है. सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया कि मेरे पास 3 प्रोसेस है. P1 इसका साइज 1 MB है, प्रोसेस P2 का साइज 3 MB है, प्रोसेस P3 का साइज 1 MB है, और उन्हें मैंने रेस्पेक्टिव पार्टीशन मेन मेमोरी के लोड किया है. आफ्टर द सम टाइम अगर मेरी प्रोसेस P1 कंप्लीट हो गई और उसके बाद P3 भी कंप्लीट हो गई, और इसके कंप्लीट होने के बाद आपकी जो फ्री स्पेसिस है 1 MB और P3 का जो फ्री स्पेस है 1 MB, और ऑन द सेम टाइम कोई और अनदर प्रोसेस आती है जिसका साइज़ क्या है P4, उसका साइज़ क्या है 2 MB है, तो क्या 2 MB प्रोसेस को आप लोड करा पाओगे मेन मेमोरी के ऊपर? नहीं करवा पाओगे ड्यू टू कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ड्यू टू कॉन्टिग्यूअस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन.
लेट्स सी और समझने की कोशिश करते हैं इस एग्जांपल से। सपोज करो मेरे पास दो प्रोसेस हैं, ठीक है ना, दो प्रोसेस हैं इस टाइम पे रनिंग स्टेट में, P2 और P4, जिनके साइज क्या है, जो पार्टीशन 2 और पार्टीशन 4 पे है। और बाकी दो रेस्ट ऑफ प्रोसेस मेरी क्या थी, P1 और P3। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ नंबर ऑफ प्रोसेस को एलोकेट किया हुआ था। वो पार्टीशन 1 पे 5 MB की प्रोसेस थी और एक पार्टीशन 3 पे 3 MB की प्रोसेस थी आपकी। वो दोनों क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब कंप्लीट होने के बाद ये क्या हो गया, पार्टीशन 1 का स्पेस फ्री हो गया, पार्टीशन 3 का स्पेस फ्री हो गया, बट प्रोसेस P2 और P4 अभी कंप्लीट नहीं हुई। और ऑन द सेम टाइम एक प्रोसेस P5 हुआ है और उसका प्रोसेस P5 का साइज क्या है, 8 MB है। अब 8 MB के प्रोसेस को मुझे एलोकेट कराना है मेन मेमोरी पे। क्या मैं एलोकेट करा पाऊंगा? तो मेरे पास कोई भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में 8 MB का स्पेस अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई वी कांट इंसर्ट इनटू द मेन मेमोरी, वी कांट पुट द प्रोसेस इनटू द मेन मेमोरी ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस इनटू द कॉन्टिन्यूस फॉर्म। बट मेरे पास नॉन कॉन्टिग्यूस फॉर्म में अवेलेबल है स्पेस। 5 MB का प्रोसेस P1 के फ्री होने के बाद है, 3 MB का प्रोसेस P3 के फ्री होने के बाद है। दैट्स वाई मेरे पास नॉन कॉन्टिग्यूस फॉर्म में जो टोटल है स्पेस है वो कितना है, 8 MB है। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पर भी क्या प्रॉब्लम आती है आपकी, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है। किसमें, डायनेमिक पार्टीशन के केस में। तो डायनेमिक पार्टीशन में भी आपकी क्या है, स्टैटिक पार्टीशन में आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आई और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आई। डायनेमिक पार्टीशन के केस में क्या आई आपकी प्रॉब्लम, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आई। अब बात करेंगे कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है, वो है आपका पेजिंग का कॉन्सेप्ट और सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट। इसी के लिए हमारे पास आया नॉन कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक। नॉन कॉन्टिन्यूस एलोकेशन टेक्निक में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पेजिंग को। पेजिंग क्या है, पेजिंग एक नॉन कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक है जिसमें हमने एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। ओके डियर, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम नॉन कॉन्टिग्यूअस की। थैंक यू।